Hello students, I am Vishal Kumar and welcome to my channel Skillbest. This is a fifth lecture for the complete lecture series for Physics Class 9 in which we are dealing with the topic motion. So if this video seems to be useful to you, please like, subscribe and share. So in our last lectures we have already discussed about the different equations of motion and the different physical quantities which are related to motion. Now let us study about the graphical representation of those physical quantities. So graphical representation of motion. In the graphical representation of motion, what we do is we plot a graph in x and y axis with two quantities. Firstly, the independent quantity which we plot on x-axis and the dependent quantity which we plot on y-axis. Now what is dependent quantity and what is independent quantity? Independent quantity is that type of quantity which will not change and which will not vary according to some other physical quantity, which is irrespective of different factors influencing the change of this. While in the dependent quantity, it may change according to different conditions and will depend on different other physical quantities. Okay, so in this graphical representation we will go through different graphs related to distance time graph and velocity time graph as mentioned in your 9th syllabus. Okay, so firstly we will start from the distance time graph. So what is distance time graph? What will be the plot of this? We will discuss here. This graph will show how the distance of the body changes with respect to time. Okay, हम distance time graph में क्या plot करेंगे कि हमारा जो distance है वो time के साथ कैसे change होता है, ये हम distance time graph में देखेंगे. इसमें हम क्या देखेंगे, जो distance हमारा है उसे हम y axis की ओर, that means dependent quantity हमारा कौन सा है, distance, और टाइम जो है वो हमारा एक्स एक्सिस की ओर कंसीडर करेंगे. वी विल प्लॉट द ग्राफ इन वाई एक्सिस, वी विल टेक डिस्टेंस एंड इन एक्स एक्सिस वी विल टेक टाइम. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस फॉलोइंग केसेस इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी देखने वाले हैं उसमें हम ये तीन केसेस डिस्कस करने वाले हैं. पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये तीन टाइप ऑफ ग्राफ्स हम डिस्टेंस टाइप ग्राफ में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है स्टेशनरी बॉडी के लिए, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन के लिए एंड थर्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी, इसमें हमारा क्या है, फर्स्टली डिस्टेंस हमारा y एक्सिस की ओर रहेगा, टाइम हमारा x एक्सिस की ओर प्लेस्ड रहेगा. अब अगर हम स्टेशनरी बॉडी के लिए देखें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा उसमें जो ग्राफ फॉर्मेशन करेगा वो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, यहां हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ फॉर्मेशन हो रहा है स्टेशनरी बॉडी के लिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. दैट मींस दिस इज द कंडीशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. क्लियर? ये हमारा कौन सा कंडीशन है, जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहेगा. दैट मीन्स क्या है, हमारा बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू
time, then the graph will be parallel to the time axis, or we can say the x axis. Clear? So इसको एग्जाम्पल समझते हैं. लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल लाइक वी हैव प्लॉटेड अ टेबल हियर. ओके, फर्स्टली द टाइम विच विल टेक एज 0 सेकेंड, 1, 2 and 3. We will plot the graph in its standard SI unit. Clear? So with respect to time, we have considered some distance like 5 meter, 5 meter, 5 meter and 5 meter in all the different time intervals. तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं फॉर फर्स्ट वन, अगर हम देखें टाइम 0 सेकेंड एंड डिस्टेंस 5 मीटर. सो टाइम 0 सेकेंड एंड डिस्टेंस 5 मीटर, यहां हमारा ये फर्स्ट पॉइंट आएगा. क्लियर? देन फॉर टाइम 1 सेकेंड डिस्टेंस 5 मीटर, फॉर टाइम 1 सेकेंड डिस्टेंस 5 मीटर. क्लियर? Then for time 2 seconds distance 5 meter, again for 2 second distance is 5 meter. Similarly for time 3 seconds the distance is also 5 meter. For time 3 seconds the distance is also 5 meter. So we can observe here that the graph is a straight line parallel to x axis or the time axis. Okay, this is the graph when the object is at stationary condition. Clear? This is the distance time graph for stationary condition. So let us consider its numerical value. That is, we have considered what? Distance here. Distance traveled is 0. Clear? As the graph is in stationary position, graph is a straight line, and time is 1 second. How we will calculate the time? This minus this, this minus this, final minus इनिशियल. टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फाइनल माइनस इनिशियल. क्लियर? सो आगे हम देखते हैं यहां क्या है. यहां देखिए, ध्यान दीजिए इस जगह पे, जो भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे? यहां सारे इंडिविजुअल डिस्टेंस को देखते हैं और टाइम को देखते हैं. क्लियर? तो अगर हम यहां देखें, टाइम हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स 1 माइनस 0 1. यहां हमारा टाइम क्या रहेगा? 1. सिमिलरली अगर हम यहां देखें 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. क्लियर? यहां क्या होगा? ये भी टाइम 1 सेकेंड, तो ये टाइम यहां 1 रहेगा. डिस्टेंस ट्रेवल 0. यहां कैसे देखें? 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0. क्लियर? सो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा क्या रहेगा? 0, टाइम टेकन 1. स्पीड अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 0. That means speed of an stationary object is 0. तो अब हम इस ग्राफ से क्या देख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें यह बताता है कि अगर हम को एक ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में प्लॉट करते हैं तो उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं. क्या कर सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं. क्लियर? अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाल सकते हैं. लेकिन यहां इस केस में क्या है? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है. ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हमारा स्पीड क्या होगा? 0. क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकेंड ग्राफ की ओर, जो कि है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं. इसमें हमारा क्या आएगा? जब हमारा बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. हमने यही पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन में. व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स और अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? सो हम अगर यहाँ ग्राफ से देखें तो अगर यहाँ एक सर्टेन टाइम इंटरवल है, अगर इस टाइम इंटरवल में देखें तो ग्राफ जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नेक्स्ट अगर हम उसी टाइम इंटरवल में देखें सेम लैप्स के बाद, तो वो एक उतना ही अप्रॉक्स डिस्टेंस कवर करता है. क्लियर? अगर हम यहां देखें ग्राफ को कुछ ड्रॉ करते हैं, यहां एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए ये जो है, ये जो डिस्टेंस है वो सेम ये डिस्टेंस है, ये जो टाइम है वो सेम ये टाइम है. क्लियर? इसको अच्छे से हाईलाइट करते हैं. ये जो टाइम है सेम टाइम ये है, देन हमारा ये जो डिस्टेंस है सेम ये डिस्टेंस है. दैट मीन्स हमारा बॉडी जो है इक्वल
डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। क्लियर? इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है टाइम फॉर 0, 1, 2, 3 एंड 4 सेकेंड, जिसमें हमारा फर्स्ट 0 सेकेंड में बॉडी हमारा रेस्ट पे है, दैट मीन्स 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देन फॉर फर्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल्स 2 मीटर, अगेन सेकेंड इट ट्रेवल्स 4 मीटर, देन 6 मीटर, देन 8 मीटर। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे। 0 टाइम जब हमारा 0 रहेगा तब बॉडी 0 सेकेंड 0 मीटर कवर किया रहेगा। नेक्स्ट हमारा है प्लॉट फर्स्ट सेकेंड में, अगर हम देखें तो वो क्या है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर है, दैट मीन्स पॉइंट हमारा यहां आएगा। देन अगेन सेकेंड में अगर हम देखें और वो क्या कवर कर रहा है, 4 मीटर डिस्टेंस, तो पॉइंट यहां आएगा। सिमिलरली फॉर 3 सेकेंड इट विल कवर 6 मीटर, फॉर 4 सेकेंड इट विल कवर 8 मीटर। सो हमारा ग्राफ जब इन पॉइंट्स को रिलेट करके ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ये ग्राफ आएगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? दैट मीन्स इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप समझते हैं कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं, अगर हम यहां एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, आप जैसे यहां देख पा रहे होंगे ट्राइंगल ABC, क्लियर, जिसका ये एक एंगल है A, दैट मीन्स एंगल BAC। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा, इसका स्लोप निकालेंगे del x by del t, दैट मीन्स del x क्या है हमारा यहां, किसी भी इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बाय इंस्टेंटेनियस टाइम, दैट मीन्स ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? तो हमारा स्लोप क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां अगर हम देखें del x का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो पॉइंट A टू पॉइंट B क्या होगा, दैट मीन्स अगर हम यहां डिस्टेंस देखें, अगर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको समझते हैं, तो बॉडी हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां से यहां तक B टू D, माइनस अगर हम यहां से ये पॉइंट को हटा दे, इस पॉइंट को अगर हटा दे, तो ये हमारा यहां से A टू B का सीधा ये हमारा del x दिखा देगा। क्लियर है? तो ये हमारा सेम हमने यहां वही शो किया है, del x इक्वल टू BD माइनस CD, दैट इज 4 मीटर। क्लियर? देन टाइम टेकन इज इक्वल टू, अब टाइम टेकन हमें निकालना है, तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे हम, तो टाइम टेकन निकालने के लिए फिर समझते हैं, टाइम टेकन निकालने के लिए समझते हैं, तो यहां क्या है, ये है 3, ये है 0, ओके, बट यहां में 0 को कंसीडर नहीं करना है, हमने यहां A तक लिया है, तो हम विल कंसीडर फर्स्ट सेकेंड, तो 3 minus 1 दैट इज 2 seconds। क्लियर? सो अब हमारा डिस्टेंस आ गया 4 मीटर, टाइम आ गया 2 seconds। तो अगर हम यहां देखें स्पीड हमारा क्या निकलेगा, del x by del t। क्लियर? तो ये हमारा आएगा 4 मीटर बाय 2 सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका बॉडी का स्पीड है। तो बॉडी दैट मीन्स हमारा यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है विद एन स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये था हमारा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फ्रॉम वेयर वी हैव कैलकुलेटेड द स्पीड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा देखते हैं ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम क्या देख सकते हैं, अगर एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, देन वो क्या होता है, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। अगेन अगर हम देखें सम पैसेज ऑफ टाइम में, देन अगेन हम उसी पैसेज ऑफ टाइम में देखें तो वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। दैट मीन्स व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इससे क्या समझते हैं हम लोग, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये देखिए यहां डिफरेंस हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकेंड में 0 मीटर, इसको फिगर के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझते हैं। फर्स्ट सेकेंड में 0 मीटर, 10 फर्स्ट सेकेंड में 1 मीटर, ओके,
ये फर्स्ट सेकेंड में बॉडी कुछ यहां रहा होगा 1 मीटर में, देन सेकेंड में ये क्या किया 3 मीटर, सेकेंड में हमारा है बॉडी 3 मीटर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें मिले। देन हम क्या करते हैं, थर्ड सेकेंड में 5 मीटर, थर्ड सेकेंड में 5 मीटर, क्लियर। देन फोर्थ सेकेंड में 10 मीटर, फोर्थ सेकेंड में 10 मीटर। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ग्राफ एक कर्व की ओर फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि क्या सिग्निफाई करता है, क्या शो करता है हमें कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां हम देखते हैं अगर टाइम को, तो टाइम हमारा यहां क्या दिखेगा, देखिए 1 माइनस 0 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 1 सेकेंड, 3 माइनस 2 1 सेकेंड, 4 माइनस 3 1 सेकेंड। बट अगर हम यहां डिस्टेंस देखें 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 10 माइनस 5 5, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस वेरी कर रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, या जैसा अभी हमने यहां दिखाया स्पीड इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, या फिर स्पीड डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, क्लियर। तो ये हमारा 3 टाइप का था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। इसको एक छोटे से समरी में देखते हैं, समझते हैं क्या है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर कोई बॉडी स्टेडी स्पीड में ट्रेवल करता है, ओके, ये क्या है हमारा, यहां जैसे सेकेंड पॉइंट यहां देखते हैं, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग लाइन में ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, जो कि हमारा ये लाइन और ये लाइन शो कर रहा है, ओके। देन the steeper the slope, the faster the object is traveling. स्लोप जितना स्टीपर होगा ऑब्जेक्ट उतना फास्ट ट्रेवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये कम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये ब्लू पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये ब्लू ग्राफ, ये हमारा क्या सॉरी ये हमारा जो ब्लू ग्राफ है, ये क्या हो रहा है, ज्यादा स्टीपर है विथ कंपैरिजन टू द रेड वन, विथ कंपैरिजन टू दिस रेड वन, ये इसके कंपैरिजन में ये ग्राफ ज्यादा स्टीपर है, दैट मींस ये बॉडी जो है ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है। देन यहां हमारा हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी हमारा स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, दैट मींस कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। देन अगेन यहां हम देख रहे हैं ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, लोअर आ रहा है, रेस्ट की ओर आ रहा है, दैट मींस हमारा बॉडी स्लो डाउन हो रहा है, वो रेस्ट की ओर हो रहा है। सो यहां हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस इन मीटर बाय चेंज इन टाइम इन सेकेंड, क्लियर, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। दैट मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है, क्लियर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देन उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड हम आगे न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, प्रैक्टिस करें आप।